Good morning, students. I welcome you to RPS online classes. Today, this class is for class 9 students. We will talk about the third lesson of our book Moments. Students, the name of the story is Ishwaran, the storyteller. This is a very interesting, very humorous, and very we can say good story, which will definitely entertain us. बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग ये स्टोरी है. We hear we listen to stories from our elders, and we entertain ourselves. This story is also no less than the stories which have been told up by our grandparents. This story is written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman, he was born in 1921 in Mysuru. Students, he was a great cartoonist. He was an Indian cartoonist, illustrator, and humorist. Humorist means he used to write humorous stories. And what we know him best for, he used to write a column in the Times of India, The Common Man. And there was a cartoon strip in the newspaper, You Said It, that was also written by him. And he died in 2015. So let us listen. Let us read this story now. This story is about a person. His name is Mahendra. Actually, the story is about Ishwaran. Mahendra is a character in the story. He was supervisor, and he had a cook. The name of the cook was Ishwaran, and Ishwaran used to tell him lot of stories. He had a great talent of telling the stories. That's why this story is about Ishwaran, and the title is Ishwaran the Storyteller. Ishwaran used to tell him many incredible stories, and his way of telling the story was really great. He used his special effects. He used his body language. He used modulation of his voice. Means he made the story a very good experience for the listener. So let us read what story Ishwaran tells Mahendra and how Mahendra felt. Okay, let us read this. The story was narrated to Ganesh by a young man. एक यंग आदमी ने ये कहानी गणेश को सुनाई थी. यंग मैन कौन था? ये महेंद्रा था. By name, he was a junior supervisor in a firm. एक junior supervisor थे in a firm which offered on hire supervisors. है ना. हायर का मतलब होता है किसी को काम के लिए, जब कुछ समय के लिए किसी को नौकरी पे रखते हैं. ठीक है. तो एक फर्म थी विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स. ये जो उसकी फर्म थी, ये क्या करती थी? हायर के ऊपर सुपरवाइज़र देती थी वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर. ठीक है. जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे सुपरवाइज़र्स हैं, और वो कंपनी अपने सुपरवाइज़र्स अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भेजती है. कोई कंपनी कहीं पे फैक्ट्री बन रही है, ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे अपने सुपरवाइज़र्स भेज के उनकी सर्विस देती है. ठीक है. तो ऐसे वो काम करते थे. तो फैक्ट्रीज़ हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फैक्ट्रीज़, ब्रिजेस, डैम्स, सो ऑन, कहीं पे भी उसको भेजना होता था, वो फर्म जो है, उसकी जो कंपनी है, वो सुपरवाइज़र को भेजती थी. तो हिज जॉब वॉज एज अ जूनियर सुपरवाइज़र. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. Keep an eye होता है ध्यान रखना. ठीक है. He had to keep moving from place to place every now and then. Now and then मतलब कभी न कभी उसको बाहर जाना ही होता था. एक जगह रुक नहीं सकते थे वो. हर किसी न किसी दिन उसको दूर जाना पड़ता था. As ordered by his head office. हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर आता कि आज वहाँ पहुँचना है. From coal mining एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. यानी चाहे वो कोल माइनिंग का हो, जहाँ पे कोयला निकाला जाता है, फिर वो चाहे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट हो. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. वहाँ से किसी केमिकल प्लांट में, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे कोई केमिकल प्लांट शुरू होने वाला होता था, तो उसको वहाँ भेज देते थे. तो मेन चीज़ क्या है? इस जॉब वॉज ट्रेवलिंग. ही वॉज अ बैचलर. शादी उनकी हुई नहीं थी. His needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions.
अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे हर तरह की ऑड कंडीशंस में, विषम परिस्थितियों में, बुरी से बुरी परिस्थितियों में वो अपने आप को क्या कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस या इल इक्विप्ड मतलब जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सर्किट हाउस मतलब जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। तो इल इक्विप्ड जहाँ पे उसको रखा गया वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी। और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट या कोई एक मेक शिफ्ट मतलब काम चलाओ, कहीं पे काम चलाओ कैनवास के टेंट में भी उसको जो ना रुकना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वारी, यानी जहाँ पे पत्थरों का काम हो, क्वारी का मतलब होता है जैसे जहाँ पे पत्थर खोद के निकाला जाता है, ऐसी जगह पे भी अगर एक टेंट में उसके लिए जगह बना दी जाए तो वो वहाँ पे भी रह जाते थे, यानी कहीं पे भी वो डरते नहीं थे, कहीं पे भी वो चले जाते थे। एंड वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, अब उनके पास एक एसेट ज़रूर थी, एसेट तो संपत्ति होती है, वो अपने कुक खाना पकाने वाले को क्या कहते हैं, वो एक एसेट की तरह थे, उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पे वो जाते वो अनकम्प्लेनिंगली मतलब बिना कोई शिकायत के उनके साथ चले जाते। ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, उनके लिए खाना पकाते थे, वॉश्ड हिज क्लोथ्स का कपड़े धोते थे, चैटेड अवे विद हिज मास्टर, चैट अवे मतलब बात करना, एट नाइट रात को उससे बात करते थे। एक्चुअली वो अपने मालिक को, अपने मास्टर को एंटरटेन करते थे। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वीव आउट मतलब दुनिया भर की कहानियाँ बना सकते थे, वो एंडलेस स्टोरीज बना सकते थे। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, एनेक्डोट्स होते हैं छोटी मोटी कहानियाँ, जैसे हम जब भी हम किसी से बात करते हैं, वी टॉक टू एनीबडी, तो हमें कोई मिसाल याद आ जाती है, कोई छोटी बात याद आती है तो हम सुना देते हैं उसको कि अभी मुझे भी एक किस्सा याद है, मैं भी सुना देता हूँ, तो उस किस्से कहानियों को हम एनेक्डोट्स बोलते हैं। और वेरिड सब्जेक्ट्स का मतलब है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात चाहे कोई भी होती, वो कोई ना कोई कहानी निकाल ही लेते और वो कहानी ईश्वरन जो है महिंद्रा को जो है ना सुना देते। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, एक बड़ी अमेजिंग कैपेसिटी थी उसकी। क्या प्रोड्यूस करते थे वो, वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से भी वो सब्जियां निकाल लेते थे और ऑयल निकाल लेते, इंग्रेडिएंट्स मतलब कहीं पे भी अगर ड्राई से ड्राई एरिया में भी वो चले जाएं, दूर से दूर चले जाएं, तो भी ईश्वरन के अंदर कैपेसिटी थी, वो कहीं ना कहीं से सब्जी अरेंज कर ही लेते थे अपने मालिक के लिए। इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, जहाँ पे बिल्कुल डिसोलेट मतलब बिल्कुल एकांत अलग सी जगह पे, विद नो शॉप्स विजिबल, जहाँ पे कोई दुकानें नहीं होती थी, फॉर माइल्स अराउंड, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelters at the new workplace। यानी कहने का मतलब क्या है, कंजर अप का मतलब होता है कि जादू सा कर देना। वो कहीं से भी जाते थे और बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार खाना बनाते थे वो फ्रेश वेजिटेबल का, 1 घंटे के अंदर। अराइविंग ऑफ एट जिंक शीट शेल्टर मतलब जिंक शीट से बनी हुई शेल्टर, जैसे हम टपरी बना लेते हैं, जैसे हम छप्पर बना लेते हैं, लेकिन छप्पर तो होता है तिनके से, लेकिन हम उसके ऊपर टिन रखते हैं, टिन शेड हम कह सकते हैं। जिंक शीट का शीट का मतलब क्या है, टिन शेड। किसी भी नए प्लेस पे पहुंच जाएंगे, वो जाते तो वहाँ 1 घंटे के अंदर ही वो कहीं ना कहीं से सब्जियां अरेंज कर लेते, सब्जियां बनाने की चीज़ें अरेंज कर लेते और खाना बना देते। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा क्या करता, वो जो ना सुबह जल्दी उठते और काम के लिए निकल जाते ब्रेकफास्ट के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, बना हुआ खाना टिफिन बना के ईश्वरन दे देते उनको। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, अब बॉस तो चले गए काम पे, इस बीच ईश्वरन क्या करता था, ही वुड टाइडी अप द शेड, पूरी शेड को, पूरे घर को वो व्यवस्थित करते थे, अरेंज करते थे, कपड़े धोते थे। एंड हैव अ लेजरली बाथ, बड़ा मतलब फुर्सत से नहाते थे वो। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, पोर मतलब डालना, सिर पे डालना, बकेट्स ऑफ वाटर बहुत सारी बाल्टियाँ सिर पे डाल के बड़े आराम से नहाते थे। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और मटरिंग मतलब गान गुनगुनाते रहना, कोई बुदबुदाना एक तरीके से प्रेयर गाते रहते वो, और जो है ना अपना टाइम पास करते रहते। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक क्या हो जाता, लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, खाने के बाद वो थोड़ी देर पढ़ते थे। बिफोर डोजिंग ऑफ, डोज ऑफ होता है सो जाना,
मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, वो सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ते थे। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और किताब क्या होती थी उनके पास, तमिल बुक होती थी जो कि एक थ्रिलर रनिंग होती थी, मतलब जिसको हम सस्पेंस की स्टोरीज और कह सकते हैं, ऐसी बुक्स होती थी, बड़े बड़े नॉवेल्स होते थे जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के होते थे, मोटी मोटी किताबें रख के वो उसमें कहानियाँ किस्से पढ़ते रहते थे। और कैसी कहानियाँ पढ़ते थे, थ्रिलिंग कहानियाँ पढ़ते थे, है ना। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस, इसके जो इमेजिनेटिव एंड डिस्क्रिप्शंस होते थे कहानी के अंदर, जो चीज़ें डिस्क्राइब की होती थी, ठीक है, और जो नरेटिव यानी कहानी को किस तरीके से डेवलप किया जाता था, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। इन थ्रॉल का मतलब होता है सरप्राइज कर देना, वो सरप्राइज हो जाते थे कहानी को देख कर, यानी कि वो सस्पेंस की कहानियाँ पढ़ते थे, थ्रिल की कहानियाँ पढ़ते थे, या फिर भूत की कहानियाँ पढ़ते थे जिसके अंदर किसी भी आदमी को डर लगे। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors and that he read. उसकी खुद की कहानियाँ भी किससे, उसके डिस्क्रिप्शंस होते थे, कहानियों का जो वर्णन था, कहानी सुनाते थे, वो उस बड़ी प्रभावित होती थी तमिल ऑथर्स से, यानी वो जिस तरह की कहानियाँ लिखते थे उससे जो ना वो बड़े प्रभावित होते थे। When he was narrating even the smallest of incidents, कुछ छोटे से छोटा इंसिडेंट भी अगर वो बता रहे होते तो क्या करते, he would try to work in suspense, एक सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। जब भी कोई छोटी सी बात भी बताते उसमें सस्पेंस और सरप्राइज भर देते वो। फॉर एग्जांपल अगर उनको बताना होता, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी उनको ये कहना हो कि कोई पेड़ उखड़ा पड़ा था हाईवे के ऊपर, ये सिंपल बात बताने के लिए भी वो क्या करते थे, ही वुड से, वो क्या कहते थे, ही वुड से विद आईब्रोज सूटेबली आर्च्ड, अपनी आईब्रोज यानी जो त्योड़ियाँ होती हैं, आँखों के ऊपर की त्योड़ियाँ होती हैं, उनको चढ़ा लेते, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर, हाथों से जो है ना बड़ा अलग तरीके से जो है ना वो मूवमेंट करते, और कैसे बताते, सरप्राइज वे में बताते, कहते द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, यानी रोड बिल्कुल सुनसान था, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस bushy beast lying sprawled across the road, अचानक मैंने देखा, रोड के ऊपर स्पॉट किया, देखा कि एक बहुत बड़ा इनॉर्मस बूशी बीस्ट जानवर जो है ना, झाड़ियों जैसा जानवर जो है ना, उसके ऊपर रोड के ऊपर लेटा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं जाके देखूं, पीछे मुड़ूं और देखूं, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं पास आया, आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, यानी उसकी जो सूखी टहनियाँ थी वो दिख रही थी मुझे। तो यानी देखो, सिंपल बात बतानी थी कि रोड के ऊपर पेड़ उखड़ के अप्रूट होके गिरा हुआ, लेकिन वो उसके अंदर भी सस्पेंस जोड़ देते थे और बोलते थे, यही उसकी एक कला थी, कहानी सुनाने में ही वॉज ए मास्टर। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकली मतलब बिना कोई सवाल जवाब किए सुनते रहते, एंटरटेन करते रहते। क्यों? क्योंकि उनके लिए बड़ा बढ़िया एंटरटेन था, टीवी की भी ज़रूरत नहीं थी उसको, वो खुद ही एंटरटेन करते थे, उसको बड़ा अम्यूज़ करते थे उसको। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, कभी भी ईश्वरन शुरू हो जाते थे कहानी बताने के लिए। कैसे शुरू करते, जैसे एक कहानी शुरू की, उन्होंने कहा कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे लकड़ियों का बहुत कारोबार होता है। देर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है ना जंगल ही जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड अप ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, हॉल्ड अप मतलब भरना, किस में, लॉरीज के अंदर, बड़ी बड़ी ट्रकों के अंदर एलिफेंट्स के द्वारा लॉग्स यानी बड़े बड़े जो गट्ठे हैं, जो तने हैं पेड़ों के, जिनको पेड़ों को काट के लॉरीज में किसके द्वारा डाला जाता है, एलिफेंट्स के द्वारा। देर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बीस्ट हैं, जानवर हैं। वेल फेड मतलब बहुत ताकतवर, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े खतरनाक। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो गुस्से में आ जाते हैं, टर्न वाइल्ड का मतलब होता है गुस्से में आ जाना, जब वो गुस्से में आ जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, यानी महावत कौन होता है, जो हाथी को चलाता है, कंट्रोल करता है, यानी एक्सपीरियंस महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग,
ये कहानी एक्चुअली प्रोलॉग क्या होता है, कहानी के सुनाने से पहले कहानी के बारे में थोड़ी सी भूमिका बनाना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, उसी को प्रोलॉग कहते हैं. तो आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट. एनेक्डोट मतलब किस्सा, कहानी. और वो जो है ना पहले बता दे थोड़ा सा हाथी के बारे में बताया, उसके बाद हाथी की कहानी शुरू कर देते इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. यही उनकी कला थी. यानी पहले नॉर्मल वे में एक बात शुरू करते, जिस भी जानवर की बात शुरू करते, फिर उससे रिलेटेड कहानी सुनाना वो शुरू कर देते थे. वन डे अ टस्कर, उन्होंने कहानी सुनाई. वन डे अ टस्कर यानी हाथी escaped from the timber yard and began to roam about. यहाँ वहाँ घूमने लगा. स्टैम्पिंग ऑन bushes. स्टैम्पिंग मतलब एक तरीके से कुचलना, झाड़ियों को कुचलने लगा. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेल होती हैं उनको जो है ना वो फाड़ने लगा, उखाड़ने लगा. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. टहनियाँ तोड़ने लगा अपनी इच्छा से. एट विल मतलब अपने मन से. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. आपको पता है कैसे बिहेव करता है जब हाथी पागल हो जाता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट इन द एक्साइटमेंट. ईश्वरन जो है अपनी कहानी में इतना सो कॉट यानी खो जाता ऑफ हिज ओन स्टोरी, खुद की स्टोरी में, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द चेयर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. यानी इतना ज़्यादा कहानी के अंदर घुस जाता कि वो खुद जो है ना जंप करता एकदम से और पैर को पटकता. एमुलेशन मतलब इमिटेट करना यानी कि नकल करना. मैड एलिफेंट यानी पागल हाथी की नकल करता, जैसे पैर पटक के दिखाता वो एकदम से. यानी पूरी एक्टिंग के साथ वो कहानी सुनाता, उसको बहुत इफेक्टिव बना देता. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है किनारे पे, गांव की सीमा में, बाहरी इलाके में. तो उसने कहा कि हाथी कहाँ पहुँच गया, हमारे टाउन के पास पहुँच गया. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. फेंस क्या होती हैं, जो हम छोटी मोटी दीवारें बनाते हैं या बाउंड्री बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फेंस बोलते हैं. लाइक माचिस की तरह तोड़ रहा था, हर चीज़ को तोड़ता. ही वुड कंटिन्यू. इट केम इन टू द मेन रोड. फिर वो हाथी कहाँ आ गया, मेन रोड पे आ गया. एंड स्मैश्ड ऑल द, स्मैश मीन्स तोड़ देना, स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट. सारी दुकानें तोड़ दी जो फ्रूट बेच रही थी. मड पोट्स, मड पोट्स मतलब जो मिट्टी के मटके होते हैं वो तोड़ दिए. एंड क्लोथ्स. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर. लोग कैसे भाग रहे थे, हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, यहाँ वहाँ भाग रहे थे. पैनिक मतलब डर के मारे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया. वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. क्या क्या उसने, जो ब्रिक वॉल थी, बाउंड्री थी, ईंट की दीवार थी, उसको तोड़ दिया. और उस दीवार को तोड़ के जो है ना वो स्कूल के ग्राउंड में, देन व्हाट ही डिड, स्कूल के ग्राउंड में घुस गया वो ब्रिक वॉल को तोड़ते हुए. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट. दरवाजे बंद कर लिए. द बीस्ट ग्रंटेड होता है एक तरीके से, गले से आवाज़ निकालते हैं, जिसको हम गुर्राना बोलते हैं एक तरीके से. दहाड़ना हम यहाँ पे कहें, चिंगाड़ना बोलेंगे. द बीस्ट कौन है यहाँ पे, जानवर कौन है, हाथी चिंगाड़ रहा था, ग्रंटिंग कर रहा था. एंड वॉन्डर्ड अबाउट, यहाँ वहाँ घूम रहा था, है ना. पुलिंग आउट द फुटबॉल फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था वो उखाड़ दिया उसने. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट. वॉलीबॉल का जो नेट था वो तोड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप टू फॉर वाटर. पानी के जो ड्रम्स टंकी रखी थी वो उसने वहाँ पे गिरा दी. और क्या किया, एंड अपरूटिंग द श्रब्स. जो जड़ी बूटियाँ या जो झाड़ियाँ, जो पौधे लगा रखे थे, वो पौधे भी उसने तोड़ दिए, उखाड़ दिए. मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. सारे टेरेस यानी छत पे चढ़ गए टीचर्स सारे, है ना, देखने लगे. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट. डिप्रेडेशन का मतलब है यहाँ पे तोड़ फोड़, देख रहे थे एलिफेंट की तोड़ फोड़ को देख रहे थे. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. कोई भी नहीं था. सोल का मतलब आत्मा होती है या स्पिरिट होती है, लेकिन वो यहाँ कहना चाहता कि एक भी आदमी नहीं था, आदमी की आत्मा तक नहीं थी वहाँ पे. नोबडी वाज देयर. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी. स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली थी. एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड. ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा टाउन जो है, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, रहने वाले लोग क्या हो गए थे, वो यहाँ वहाँ भाग गए थे, डिसअपीयर हो गए थे, गायब हो गए थे.
आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. मैं एक जूनियर क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ता था. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. छत से मैं भी देख रहा था. आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली. पता नहीं मुझे क्या हुआ. आई ग्रैब द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स. केन मतलब डंडा. एक डंडा मैंने टीचर्स के हाथ से लिया. एंड रैन डाउन द स्टेयर्स. स्टेज से दौड़ता नीचे आया. इनटू द ओपन ग्राउंड में आ गया. द एलिफेंट ग्रंटेड. हाथी भी चिंघाड़ा. एंड मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. उसने एक ट्री की ब्रांच को जो है ना बड़े ही खतरनाक तरीके से तोड़ दिया, मरोड़ दिया, स्वंग कर दिया. विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक. जो उसने उसके अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी. इट स्टैम्प्ड. पैर पटका उसने. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. एकदम से बहुत ज़्यादा कीचड़ और जो ना धूल उड़ाई उसने. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट. मैं भी हाथी की तरफ बढ़ा. स्टिक इन हैंड. स्टिक मेरे हाथ में थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय रूफ हाउस टॉप्स. लोग हिप्नोटाइज मतलब एक तरीके से हिप्नोटाइज्ड होके, मंत्र मुग्ध होके बिल्कुल जो ना देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. बड़ी लाल आंखों से हाथी मेरी तरफ देखा. रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. मेरी तरफ जो ना वो भागने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक. इसने अपनी ट्रंक उठाई. एंड ट्रम्पेट लाउडली. और जोर से चिंघाड़ा. एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट, आई मूव्ड फॉरवर्ड. मैं आगे बढ़ा. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स. मस्टरिंग मतलब इकट्ठा करना, अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करते हुए वैक्ड. वैक्ड का मतलब है हिट करना. यहाँ पे वैक्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक. जल्दी से क्या किया, उसकी जो टो नेल, पैर की जो तीसरी उंगली थी, टो की नेल के ऊपर जो है मैंने हिट किया. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. जो जानवर था, हाथी था, कुछ समय के लिए स्टन्ड रह गया. मतलब वहीं के वहीं जड़ हो गया, रिजिड हो गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो. फिर कांपने लगा सिर से लेके पैर तक. एंड कोलैप्स. और धड़ाम से वहीं पे गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. अब स्टूडेंट्स आप ये समझो, ये स्टोरी जो उसने सुनाई है कितनी क्रेडिबल है, कितनी ये बिलीवेबल है. इस पर कोई बिलीव करेगा? लेकिन नहीं. इस तरह की कहानियाँ वो जो है ना उसको सुनाता रहता. लेकिन महेंद्रा को कोई दिक्कत ही नहीं थी. महेंद्र को क्या परेशानी थी? महेंद्र को तो एक एंटरटेनमेंट था उसके सामने. तो टीवी भी जो नहीं कर सकता था वो कौन कर रहा था? ईश्वरन कर रहा था. अब ईश्वरन की कहानी तो शुरू कर देता. एट दिस पॉइंट वो क्या करता, इस तरीके से कहानी को सुनाता. एंड ही वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. कहानी को वहीं बीच में छोड़ देता. एंड गेट अप मम्बलिंग. और फटाक से उठता बीच में बुद्ध बताते हुए. क्या कहता? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. मैं आता हूँ, अभी लाइट जला के आता हूँ, गैस जला के आता हूँ और खाना जो है गर्म, डिनर को गर्म करके लाता हूँ. महेंद्रा who had been listening with rapt attention would be left hanging. और महेंद्र जो है, जो बड़ी रैप्ट अटेंशन, बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे, बेचारे बीच में ही लटक जाते. क्यों? उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता और वो कहानी बीच में ख़त्म हो जाती. When he returned, जब वापस आता, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. अब वापस आता ईश्वरन को ये पता नहीं होता वो कहानी कहाँ पे ख़त्म की थी उसने, उसको खुद नहीं पता होता. महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम. महेंद्रा को क्या करना पड़ता? रिमाइंड कराना पड़ता, याद करना पड़ता कि भाई कहानी यहाँ पे थी. दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. बताता कि भाई कहानी का कंक्लूजन तो पेंडिंग है, आगे क्या हुआ ये तो बताओ. वेल, फिर वो बड़े आराम से कहता, वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड. समन मतलब बुलाना. एक वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया. टू रिवाइव द एनिमल. वो आया, उसने रिवाइव मतलब होश में लाना, एनिमल को होश में लाने के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. और हल्के से कंधे उचका देता. 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. और 2 दिन के बाद में उसका महावत आया और उसने उसको जंगल में लेकर चला गया. अब यहाँ पे वो कहानी ख़त्म कर देता, बड़ी अजीब से वे में ख़त्म कर देता. अब महेंद्र उससे फिर से सवाल करता, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट. किया तुमने कैसे? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. उस बीस्ट को नीचे कैसे गिराया? तो वो कहता है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज़ आर्ट. ये कोई जैपनीज़ आर्ट है. आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु है ना. कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड. इसको कहते हैं, इसको कराटे या जुजित्सु कहा जाता है. इट आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर. मैंने कहीं पढ़ा था इसको.
इट्स टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, ये टेम्परली कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है किसको, नर्वस सिस्टम को, यानी इंसान या जानवर कुछ समय तक कुछ भी सोच नहीं पाता, बोल नहीं पाता, हिल नहीं पाता, और उसका नर्वस सिस्टम जो है ना पैरालाइज हो जाता है और वो गिर जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ वो स्टूडेंट्स अपने बॉस को सुनाता, बॉस को बड़ा अच्छा लगता, अच्छा क्यों नहीं लगेगा भाई, इस तरह की कहानियाँ सुना सुना के बड़ा मज़ा आता उसको, और जो ना बड़ा एंटरटेन करता। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस। एक दिन भी नहीं गुजरता जब ईश्वरन कोई कहानी याद नहीं करता, कहानी नहीं सुनाता, और कहानी में क्या होता, एडवेंचर होता, हॉरर डर होता, सस्पेंस होता, इस तरह की कहानियाँ वो सुनाता। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, कहानी भले ही चाहे क्रेडिबल हो, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, विश्वास करने लायक, कहानी भले ही विश्वास करने लायक हो या ना हो, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, वो बड़ा मज़े से उसको इंजॉय करता, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। इनिमिटेबल मतलब जिस तरीके से हर बार एक नए तरीके से वो कहानी उसको सुनाते, जिस तरीके से वो इफेक्टिव में कहानी सुनाते। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, ईश्वरन तो टीवी से भी ज़्यादा थे, यानी उसके पास टीवी नहीं है, इस चीज़ की कोई गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि टीवी नहीं होने की कमी को भी वो पूरा कर रहे थे। कौन, ईश्वरन, कहीं उससे ज़्यादा कर रहे थे वो। महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, यानी यहाँ जहाँ महेंद्र रह रहा था वहाँ पे ईश्वरन टीवी की कमी को पूरा करता है, यानी टीवी भी उस कमी, टीवी होता तो भी उतना एंटरटेनमेंट महेंद्र को नहीं कर पाता। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज का तो बड़ा शुभ दिन है, ऑस्पिशियस डे है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, रीति रिवाज के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, डेलिकेसीज मतलब बहुत डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी आत्मा के लिए, स्पिरिट्स के लिए, यानी वो कहता है कि हम हमारे पूर्वजों की आत्मा के लिए खाना बनाते हैं, बड़ा टेस्टी खाना बनाते हैं, इसलिए आज का दिन बड़ा ही ऑस्पिशियस है। उस रात, दैट नाइट, महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, बड़ा डिलीशियस मतलब बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी, एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को प्रेज करना, उसकी बड़ाई करना, एक तरीके से उसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। कुलिनरी स्किल्स होती हैं खाना पकाने की स्किल्स, कि भाई तुम खाना बड़ा ज़बरदस्त बनाते हो, बहुत अच्छा पकाया आपने, तो कुलिनरी स्किल्स के लिए, उसके खाना पकाने की जो स्किल्स थी उसके लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बड़े खुश नज़र आ रहे थे वो, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन क्या हुआ, लॉन्च्ड इनटू का मतलब होता है वो किस उसमें घुस गए, एक बहुत ही गैरिश मतलब बहुत ही भयानक सी कहानी, इन्वॉल्विंग अ सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है, सुपरनैचुरल भूतों की कहानियाँ सुपरनैचुरल होती हैं, देवी देवताओं की कहानी जिसमें चमत्कार हो, वही कहानी क्या होती है, सुपरनैचुरल होती है। गैरिश बड़ी ही एक जो ना बड़ी ही भयानक डरावनी सी कहानी में वो चले गए। यू नो व्हाट हैपेंड, वो खाना जब खा रहे थे, बड़ा मज़े से खाना खाया, सोने जाने वाले थे, और उसी समय ईश्वर ने नई कहानी शुरू कर दी। क्या कहा कि यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बैरियल ग्राउंड। बैरियल ग्राउंड होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, यानी कि ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। वो कहता है कि इस पूरा फैक्ट्री एरिया है जो हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जहाँ फैक्ट्री खुलेगी, यहाँ पे कभी बैरियल ग्राउंड हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवियरी, मतलब प्लेजेंट रेवियरी मतलब बड़ी खुश मिजाज मूड में थे वो खाना खाने के बाद में, एकदम से जग्ड आउट मतलब तुरंत उसको बाहर निकाल दिया उसको। किसकी बात बता के, भूतों की बात बता के, कब्रिस्तान की बात बता के। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, यानी बड़े अच्छे मूड में बेचारे थे, बड़ा ही सेटिस्फाइंग मील खा के, टेस्टी खाना खा के, मील मतलब यहाँ पे खाना खा के।
आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। अब ईश्वरन आगे कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था। When I saw a human skull lying on the path, जब मैंने रास्ते में एक इंसानी खोपड़ी, स्कल खोपड़ी वहाँ पड़ी देखी कि यहाँ पे ज़रूर कब्रिस्तान था। Even now I come across a number of skulls, अब भी मैं बहुत सारे स्कल्स देखता हूँ, खोपड़ी देखता हूँ, एंड बोन्स, हड्डियाँ देखता हूँ। ईश्वरन कंटिन्यू। अब ईश्वरन ने अपनी नई कहानी शुरू कर दी भाई। अब ये कहानी उस कहानी जितनी एंटरटेनिंग तो है नहीं, हॉरर से भरी हुई कहानी है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो कहानी बताने लगा कि कैसे उसने रात में घोस्ट देखे। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. वो कहता है कि मैं easily डरता नहीं हूँ, frightened नहीं हूँ इन चीज़ों से, मैं बहुत brave fellow हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on, लेकिन एक बहुत ही हॉरिबल ड्रावना घोस्ट जो है, एक औरत का घोस्ट है, अपीयर्स मतलब मेरे सामने आ जाता है, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, कभी आता है कभी चला जाता है, एट मिडनाइट, रात को मिडनाइट, ड्यूरिंग द फुल मून, जब पूरी चांद की रोशनी होती है, फुल मून होता है, पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा होती है, तो वो भूत मुझे दिख जाता है। वो भूत किसका है? एक लेडी का है। और वो ऑन एंड ऑफ मतलब कभी दिखता है कभी नहीं, एकदम से दिखता है, ठीक है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत बदसूरत जानवर है, क्रीचर है, विद मैटेड हेयर, उसके बड़े बड़े जो ना बड़े ही बदसूरत बाल हैं, एंड अ श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड फेस मतलब बड़ा ही सिकुड़ा हुआ मुंह है, लाइक अ स्केलेटन, स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा, पिंजर जिसको हम कह सकते हैं, जो कि बायोलॉजी लैब में होता है, कंकाल जिसको हम कहते हैं, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, ऐसे लगता है जैसे कोई कंकाल जो है हाथों में, फीटस मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा, जन्म के टाइम का, हाथ में कोई फीटस उसके हाथ में हो, अजन्मा बच्चा हो जैसे उसके हाथ में। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। अब महेंद्रा बेचारा डर गया जिस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहा था, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और एकदम से इंटरप्ट करता है, बीच में रोकता है, उसको कहता है यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना भूत होते हैं ना आत्माएं होती हैं। इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये केवल तुम्हारे दिमाग का एक वहम है, एक फिगमेंट ऑफ योर माइंड है, बस ऐसे ही कह रहे हो। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कराओ, मे बी योर हेड एज वेल, अपना सिर भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो। तो एक्चुअली इस तरीके से महेंद्र ने ईश्वरन को डांट दिया, क्योंकि उसको जो कहानी थी वो अभी एक्चुअली एंटरटेनिंग तो नहीं थी लेकिन डरावनी थी। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, गया उठा और रिटायर्ड फॉर द नाइट मतलब सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, उसको लगा कि सल्क मतलब नाराज़ हो जाना, उसको लगा कि ईश्वरन जो है ना कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों के लिए अब मुंह फुलाएगा, नाराज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डांट दिया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक, ही वॉज सरप्राइज टू कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन वो सरप्राइज हो गया, सुबह अगली सुबह वो उतना ही चीयरफुल था और उतना ही टॉकेटिव था, ऐसे ही बात कर रहा था जैसे पहले कहता था, उतना ही चीयरफुल था, खुश मिजाज था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, और उस दिन से महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, जब भी वो सोने जाता अनईजी हो जाता। सर्टेन अनईज का मतलब होता है सोने से पहले उसके दिमाग में मतलब क्या होता, हल्की सी वो इमेज ज़रूर आती, उसको वो बात ज़रूर दिखती, वो उस बात को वो सुनता। कौन सी बात को सुनता? उसकी कहानी को, डर को, भूत की कहानी को। तो सोने से पहले उसको थोड़ी सी जो ना अनईजी सा महसूस होता उसको। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, और हर रात पीयर्ड इनटू का मतलब होता है बाहर देखना, अंधेरे की तरफ देखना। तो अंधेरे में देखने की कोशिश करता वो, डार्कनेस में देखता आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के बिल्कुल पास में विंडो थी, तो उस विंडो से बाहर देखता अंधेरे में। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, इन द विसिनिटी का मतलब है आसपास। तो लगता
कि कोई डार्क शेप जो है, कोई अंधेरी आत्मा या कुछ कोई ऐसा साया, अंधेरा साया तो कुछ नहीं है जो वहाँ पे मूवमेंट कर रहा हो। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, उसको हमेशा क्या नज़र आता? सी ऑफ डार्कनेस का मतलब है कि अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। सी ऑफ वाटर होता है जहाँ पानी पानी होता है, यहाँ पे सी ऑफ डार्कनेस है यानी अंधेरा ही अंधेरा है। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और कई मील दूर उसको क्या दिखती? फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री के पास में वो थे वहाँ पे, तो लाइट्स जगमगा रही होती। ट्विंकलिंग मतलब जगमगाना, लाइट्स जगमगा रही होती कई मील दूर, क्योंकि अंधेरे में तो कई मील तक आप लाइट को जलती हुई देख सकते हैं। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. हमेशा उसको अच्छा लगता था, admire मतलब प्रशंसा करना या उसको मतलब प्रेज करना। मिल्क वाइट लैंडस्केप मतलब बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद सीनरी ऑन फुल मून। आपको पता है फुल मून जब पूर्णिमा होती है, फुल मून की नाइट में दूर दूर तक सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है। किसकी वजह से? मून की वजह से। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन ईश्वरन की कहानी फीमेल गोस्ट की सुनने के बाद में ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब मून वॉज फुल मतलब जब पूर्णिमा हुई तो अपने विंडो से बाहर देखने में उसको डर लगा। क्यों? उसको कहानी याद आ गई ईश्वरन की कि अभी एक फीमेल गोस्ट है वहाँ पे। वन नाइट महेंद्रा वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात क्या हुआ? वो जाग गया। बाय लो मोन, हल्की सी कराने की एक मॉर्निंग की आवाज़ थी। क्लोज टू हिज विंडो, विंडो के पास आवाज़ आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसको लगा, पुट इट डाउन मतलब उसने अपना दिमाग झटक दिया कि नहीं कुछ नहीं है। उसके लिए कोई कैट है जो कि घूम रही होगी। प्रॉलिंग मतलब यहाँ वहाँ घूमना, अराउंड किस लिए? माइस के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए। बट द साउंड वॉज टू गटरल, बहुत गटरल थी। गटरल मतलब जैसे हम गले से साउंड निकालते हैं उसको गटरल, गुर्राना एक तरीके से गले से। फॉर अ कैट, उसको लगा कि कैट की आवाज़ तो नहीं होती, ये तो गले से निकली हुई आवाज़ है। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट। रेजिस्ट होता है रोकना, क्यूरियोसिटी मतलब डिज़ायर, अपनी इच्छा को रोकने की कोशिश कर रहा है बाहर देखने के लिए। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट, बिहोल्ड मतलब देखना, कहीं ऐसा ना हो कि ही बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कुछ ऐसा सीन ना दिख जाए, साइट ना दिख जाए कि उसका दिल ही रुक जाए। यानी उसकी इच्छा थी, डिज़ायर थी कि वो बाहर देखे कि बाहर क्या है, लेकिन ये सोच के रह जाता कि कुछ ऐसा न दिख जाए कि बेचारे को हार्ट अटैक आ जाए और उसका दिल काम करना बंद कर दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, वो जो वेलिंग थी, रोने की आवाज़ थी, बिकेम लाउडर, और तेज़ हो गई। लेस फिलाइल, फिलाइल क्या होता है? कैट की आवाज़ को फिलाइन बोलते हैं, फिलाइन। तो कैट फैमिली के जो जानवर होते हैं, जो कैट की तरह जो ना आवाज़ निकालते हैं, ऐसी आवाज़ तो वो थी नहीं, ठीक है। तो ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब लालच, रेजिस्ट मतलब रोक पाना, वो अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पाया एनी मोर, और उसने क्या किया? बाहर देख लिया। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, यानी उसने बिल्कुल विंडो के पास बैठ के, विंडो सिल मतलब विंडो जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक सिर उठाया। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, क्या किया उसने? बाहर मून लाइट में बाहर देखना शुरू किया। वाइट शीट का मतलब है चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद था, क्योंकि सब कुछ क्लियर दिख रहा था मून लाइट की वजह से। देयर नॉट टू फार अवे, बिल्कुल ज़्यादा दूरी पे नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, उसको एक क्लाउडी फॉर्म नज़र आई, एक अंधेरा साया नज़र आया जिसके हाथ में एक बंडल सा था, जैसे हाथों में कुछ बंडल सा, कुछ गठरी सी उठा रखी हो। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, तुरंत क्या हुआ? पसीना आ गया उसको, ठंडा पसीना। एंड फैल बैक ऑन द पिलो, वापस फटाक से अपने बिस्तर में वो लेट गया। एक्चुअली उसको देख के डर गया। पेंटिंग, हाँफने लगा वो, सांस फूल गई उसकी। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्री एक्सपीरियंस, जैसे धीरे धीरे फिर वो रिकवर हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फ्रॉम द गैस्ट्री मतलब भयानक एक्सपीरियंस जो हुआ। ही बिगेन टू रीजन, दिमाग का यूज़ करना शुरू किया। विद हिमसेल्फ यानी खुद को समझाना शुरू किया। एंड फाइनली कंक्लूडेड
और अंत में उसने ये अंदाज़ा लगाया, ये रिजल्ट निकाला कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। ये हो सकता है कि कुछ उसके दिमाग का ही कोई सजेशन हो, यानी उसके दिमाग का ही कोई वहम हो। सम ट्रिक हो सकती है दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। ये उसके दिमाग की कोई ट्रिक हो सकती है, यानी उसके दिमाग में ही कोई चीज़ हुई होगी, कोई मन का वहम होगा जो कि हम सबकॉन्शियस माइंड में देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है, जब हम कॉन्शियस तो होते हैं एक तरीके से, लेकिन पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होते हैं, हमें भ्रम हो जाता है जैसे कोई चीज़ वहाँ पे है। उस सिचुएशन को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो उसने खुद को समझाया कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो ऐसे दिख गई हो, कोई मन का वहम हो, तो उसने आपको समझाया, वो सो गया। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठा, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड मतलब कम हो जाना फ्रॉम हिज मेमोरी। यानी जब तक वो सुबह उठे, नहाए, ब्रेकफास्ट किया, उसका जो हॉरर था, डर था प्रीवियस नाइट का, वो फेड हो गया था, उसकी यादों से दूर चला गया था, यानी कि अब उसको डर नहीं लग रहा था, यानी वो एक चीज़ उस बात को भूल सा गया था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन ने उसको विश किया दरवाजे पे, विद हिज लंच पैकेट खाना पका के दिया, लंच खाने के लिए दिया, एंड हिज बैग, उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन हंस के उसकी तरफ कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट। आपको याद है उस दिन मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, फीमेल घोस्ट के बारे में, विद अ फीटस, एक फीमेल घोस्ट के हाथों में एक फीटस है, एक जैसे बच्चा, जैसे फीटस मतलब जन्म के बाद तुरंत बाद का जो बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं। इन इट्स आर्म्स, आपको मैंने बताया था, यू वर सो एंग्री, आपको बड़ा गुस्सा आया था, विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, आपको लगा था कि मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ चीज़ों को, ऐसे ही मेरी कल्पना है वो, आप ऐसे लग रहा था। वेल यू सो हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, मुझे पता है आपने उसको खुद देखा है कल। आई केम रनिंग, मैं आपके पास आया था, हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, किसी के रोने की आवाज़ सुन के मैं आपके पास आया था, एंड दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो आवाज़ जो है आपके रूम से आ रही थी, यानी कि आप मॉर्निंग कर रहे थे, आपकी आवाज़ें आ रही थी, आप डरे हुए थे बुरी तरीके से, यानी ज़रूर आपने वो घोस्ट, फीमेल घोस्ट देखा। अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, चिल मतलब एक तरीके से है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, एकदम से इंसान स्टंट रह जाता है, तो बेचारा डर गया। चिल वेंट डाउन का मतलब है एकदम से डर के मारे वहीं के वहीं वो जो ना रिजिड से हो गई। ही डिड नॉट वेट, रुके नहीं वहाँ से, भाग लिए, फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ईश्वरन का पूरा सेंटेंस सुना ही नहीं उन्होंने, सीधे वहाँ से निकले। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, सीधे अपने जल्दी से अपने ऑफिस में गए, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने पेपर्स दिए, रिजॉल्विंग टू लीव, ये मन ठान, रिजॉल्व करना होता है ठान लेना, ये ठानते हुए, पूरा पक्का इरादा करते हुए, टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। हॉन्टेड मतलब जहाँ पे भूत रहते हों, उस प्लेस को हम कहते हैं हॉन्टेड, यानी उस हॉन्टेड प्लेस को, उस ड्राउने प्लेस को वो अगले ही दिन छोड़ देगा। तो स्टूडेंट्स देखो कैसे ईश्वरन ने अपनी कहानी से, अपनी कला से, अपने इफेक्ट से, महेंद्र जो कि कहीं पे भी रह सकता था, he could go to any place, he could stay alone, he could stay in a tent, he could stay in a stone quarry, he could stay near the railway bridge, he could stay at any construction site, and he never feared, वो कभी नहीं डरा, उसको भी डरा दिया। तो it was this story students, I hope you were entertained with this story, आपको बड़ा मज़ा आया होगा, इसको पढ़ें, ठीक है। इसका जो असाइनमेंट है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, दैट आई विल सेंड सेपरेटली। आपको कोई दिक्कत होगी तो यू विल डायरेक्टली कॉल मी, और आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करेंगे, एंड यू लिसन टू दिस स्टोरी, यू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू, एंड आई थैंक यू, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।